खुद में तुझे क्या लाइक डिफरेंस फील हुआ है आफ्टर टेकिंग थेरेपी? I think I the small things are यार मैं बहुत काम हो गया हूँ. Like काम this is again like another thing that therapy taught me कि यार ऐसा नहीं है कि aggression by itself एक bad emotion है. कोई emotion in the spectrum of emotions is not a bad emotion. It 100 only becomes bad if you choose to express it a certain way. strong. Men should not cry. Men don't cry. क्या है तेरा ओपिनियन, क्या है इस बारे में? भाई मैं तो बहुत रोता हूँ तो मेरा तो ओपिनियन यही है कि महीने में एक बार या आपके हिसाब से जो भी आपका टाइमलाइन सूट कर रही है आपको एक बार बीच में रो लेना चाहिए. एक इमोशनल ऐसा क्या होता है ना कि अगर आपका डैम बहुत देर तक बंद है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि पानी स्टैग्नेट होके भी चीजें खराब हो सकती है या फिर वो फ्लो रुक गया बहुत देर के लिए. तो कभी कभार रिलीजिंग दैट फ्लो इज इम्पोर्टेंट. आज का एपिसोड इज वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज टुडे as a guest I have my near and dear friend. He's not more of a friend but मेरा भाई है ये, brother from another mother kind of a person. Aditya Bindra, welcome bhai to the podcast. I am glad that you agreed to also open up about your mental health, your journey, and I have seen it with a very near and clear lens. And then if you share as much impact as we can make and let people know out there that everything is possible. Thank you for agreeing to be on the podcast as a guest. Welcome and thank you for inviting me and thank you for giving me this opportunity because I feel कि यार शेयर करने से दिल भी हल्का होता है और लोगों का दिल भी हल्का हो सकता है ये सुनने से. And probably this is the last step that they're looking for to get pushed into an actual journey, a journey to better For sure. themselves, a journey that they take on themselves. क्या देखो हाँ, I if they can do it, I can do it. Exactly. Everyone needs that one ray of hope, right? कि भाई इसने कर लिया तो मैं भी कर ही लूंगा. And then is when you push it. So just Right. us trying to do that. All right. So for our viewers, Aditya, just an introduction about yourself. What are you doing in life right now? More about your background. I know we are in the US right now. US में है, but also about your family back in India, and just to set up and let the people know more about you. Yeah, so man, just to start it, just to summarize it, I can say like I come from a fun Punjabi family, fun-loving Punjabi family. So everybody has notions about Punjabi families, but sometimes true, sometimes not true. But growing up, my life mostly has been loving parents, uh, hit or miss grandparents, but loving and fighting siblings. जब तक भाई बहन के साथ लड़ाई ना हो तो भाई मजे नहीं आते. But in True. my family, I have parents, a younger sister. Then I had both my grandparents, but unfortunately, one of them passed away a couple of years ago. And I also had my bua, or as we say, like dad's sister, staying with us, and her daughter. So kind of an extended Punjabi family. And growing up, it was fun. It was fun. I always thought that we were from a lower middle class family, but growing up, I quickly realized it was a middle or upper middle class family because being a lower middle class or even a lower or poorer section in India is an entirely different experience. जो मुझे सॉर्ट ऑफ रियलाइज हुआ जब मैंने ज्यादा और दुनिया देखी, जब मैं घर से थोड़ा बाहर निकला, जब मैं थोड़ा सा और मैच्योर हुआ लाइफ में, मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, आई वाज एक्चुअली गिफ्टेड एनफ टू बी बोर्न इन अ गुड फैमिली. Yep, definitely. So But just grew up, in a loving Punjabi, extended Punjabi family in close to Delhi, place called Faridabad. Has a lot of industrialists, has a lot of people involved in the automobile industry, steel trading. That is a sort of environment I've grown up in. My dad is a businessman, so I've grown up in a business family, seeing those side of the things, and then now working in corporate, a very different experience. So yeah, and just lucky enough to have parents that could actually provide for me enough to send me to the US. That's when I actually realized that some people, even though they want to come to the US, they can't because of affordability. So yeah.
bumpy but good ride. Yep. And talking about fun family, I can definitely vouch for it. मैं तो मिल ही चुका हूँ तेरे मॉम से and डैड से भी बात कर ली है एक बार. So definitely a fun family, and Punjabi music has come into my life because of you. So thank you for that. By talking about childhood, and not like, it's always a bumpy ride for everyone in life. For Just sure. wanted to ask you कि growing up in your childhood or your teenage, जब like probably we wouldn't have realized back then, because I definitely did not, but growing up, what one of the challenge mental health challenges that you have faced, तूने face किया है, which you realized later or maybe at that point in time, and how did you at that point in time cope up, and what do you think you could have done better now? Uh, I think the biggest challenge would be, if I had to put it, was underconfidence. Confidence नहीं था मेरे पास, lack of confidence. तो उसको मैं mental challenge ही मानूंगा, because if you lack confidence, and even if you want to do certain activities, you feel like यार क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, या इसका आउटकम अगर थोड़ा सा भी sideways चले जाएगा तो क्या होगा. And that is just like taking up activities, but not just for activities. Even when you go out and make friends, right? You have Hmm. to initiate conversations. Hmm. So the whole underconfident thing also ties into that कि यार अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी को अप्रोच करके बात करने का, तो तुम्हारे दोस्त कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे. तो आई थिंक ग्रोइंग अप द बिगेस्ट मेंटल चैलेंज वाज अंडर कॉन्फिडेंस, बट on the surface it looked like I didn't have friends, but when I actually dissected it, grew up, became realized a lot more, saw a lot more, I realized कि ऐसा नहीं है, दोस्त बन नहीं सकते थे. ऐसा है कि मैं बात करी नहीं, मैं कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया उस टाइम पे दोस्त बनाने के लिए. So I think confidence was the biggest challenge. How I dealt with it, I didn't really have to, because this is a problem that I've thought about a lot कि यार उस टाइम पे मेरे को इतना क्यों हिट नहीं हुआ कि दोस्त नहीं है. क्योंकि उस टाइम पे मेरे को रियलाइज होना चाहिए था ना कि यार वो भाई सबके पास दोस्त है तो मेरे पास क्यों नहीं है. सबको सब अगर सबकी बर्थडे पार्टीज हो रही है, ठीक है, और मेरी एट द एंड ऑफ द ईयर जब मेरी बर्थडे पार्टी का टाइम आ रहा है, तो मैं हर बार बोल रहा हूँ कि यार मेरे को अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पे जाना है, बिकॉज मेरे पास दोस्त है ही नहीं बुलाने के लिए, राइट. सो I think I didn't have to think about it in terms of it actually being a problem, because my mom and dad took up most of it. और उस टाइम पे उन्होंने रियलाइज, द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज, उस टाइम पे उन्होंने कभी रियलाइज ही नहीं होने दिया कि उन्हें पता है कि ऐसा कोई सीन है, या उन्होंने उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि यार तू दोस्त क्यों नहीं बना रहा है, या तू ज्यादा. उन्होंने बस मेरे को हमेशा ये पुश करा कि देखो जो अच्छा लग रहा है तू कर, देखो पढ़ाई अच्छी लग रही है तू पढ़ाई कर, देखो स्पोर्ट्स पे खेल रहा है तू स्पोर्ट्स खेल, कोई वो नहीं है, देखो जो करना है तू कर. बट इट वॉज जस्ट मी अज्यूमिंग कि यार मैं बात करूंगा तो साइडवेज कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा. Hmm. बट I definitely feel कि हाँ, that was the biggest mental challenge growing up. But having supportive parents, like the way that you said, is definitely a plus, because you did not feel that gap. Right. It's I did only, not. I think, when you went out of your like घर से बाहर निकल कर, Right. बाहर जब तुम जाते हो, और तब तुम्हें वो हिट होता है कि ओह, this was the missing piece, या this was something that parents have taken care of अब तक. Like I have done that as well. जो true, I can definitely understand. एंड वो घर से बाहर जाने वाली बात इज एक्चुअली ट्रू, बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई वाज आउट ऑफ माय होम. इसमें अब थोड़ा सा यार ये भी फैक्टर आता है कि हाउ ऑन द फ्लिप साइड हाउ प्रोटेक्टिव योर पेरेंट्स आर ऑफ यू एज अ किड. बिकॉज अगर वो बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूँ स्लाइटली ओवर प्रोटेक्टिव है, देन ऑल्सो यू मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कहीं बाहर इन्वाइट करा, बट इफ Hmm. इट्स लाइक स्लाइटली लेट एट नाइट, देन एज प्रोटेक्टिव पेरेंट्स दे वुड not just not in a negative light, but just being protective parents, protective of your Yeah. kid is Yeah. is is, is a feeling that every, I think, parent has. तो दे वर लाइक नहीं, ये थोड़ा सा लेट है, आई थिंक इस पे तुम नहीं जा सकते हो, बट अगर कुछ मॉर्निंग इवेंट होगा तुम जा सकते हो. तो अ कपल ऑफ टाइम्स आई थिंक मेरे को ऐसा लगा यार कि क्यों रोक रहे हैं, मैं जाता तो मेरे और दोस्त बन जाते. बट ओवर टाइम फिर मैंने ये रियलाइज करा है कि यार अगर वो मेरे को भेज भी देते हैं, ऐसा नहीं है मेरे पास स्कूल में बात करने का टाइम नहीं था, और ऐसा नहीं है कि जो दोस्त मेरे और नहीं जा रहे हैं पार्टीज पे उनके दोस्त ही बन रहे हैं. तो दैट वाज नॉट द की मिसिंग लिंक इन. तो आपको थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए आदित्य, आपको True. थोड़ा सा अपने शेल से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, आपको थोड़ा सा वल्नरेबल होना इज गुड. Bhai, I know we have spoken about this thing about like the societal image that which is called like
men should be strong, men should not cry, men don't cry. क्या है तेरा ओपिनियन, क्या है इस बारे में? भाई मैं तो बहुत रोता हूँ, तो मेरा तो मेरा तो ओपिनियन यही है कि महीने में एक बार, या आपके हिसाब से जो भी आपका टाइमलाइन सूट कर रही है, आपको एक बार बीच में रो लेना चाहिए। हम्म, तो एक एक इमोशनल, ऐसा क्या होता है ना कि अगर आपका डैम बहुत देर तक बंद है, तो कई कभार ऐसा हो सकता है कि पानी स्टैग्नेट होके भी चीजें खराब हो सकती है, या फिर वो फ्लो रुक गया 100%. बहुत देर के लिए। तो कभी Love कभार that example. हम्म, रिलीजिंग दैट फ्लो इज इंपॉर्टेंट। तो मैं बांध के नहीं रखना चाहूंगा अपने आंसू। मेरे को जिस दिन बहुत मन कर रहा होगा यार, आज थोड़ा सा रो ही लेना चाहिए, बिकॉज कोई बंदा ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि रोने के बाद मेरे को बुरा फील हुआ, और दे फील बेटर, यू नो, लाइट हार्टेड। तो आपका मन करे बिल्कुल रो लेना चाहिए आपको, मुझे ऐसा लगता है, मैं डेफिनेटली तो रो लेता ट्रू. हूँ। भाई तुझे याद है लास्ट टाइम तू कब रोया है? लास्ट टाइम मैं भाई हफ्ता 2 हफ्ते हो गए होंगे। 2 हफ्ते 3 हफ्ते। मैं अपना टाइमलाइन बता दिया बहुत क्लियरली, महीने में एक बार। द पॉइंट दैट यू सेड अबाउट कि डैम है, डैम अगर फ्लो नहीं होता है वो वहां से पानी, तो स्टैग्नेशन के वजह से भी वो पानी गंदा होता है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज दैट इज हाउ वी हैव ग्रोन अप थिंकिंग कि नहीं, इट शुड नॉट बी दैट वे. खुद में ही रहते हैं, एंड देन इट स्टार्ट्स अंदर ही बिल्डिंग अंदर, it starts eating us up. So I feel that point is really amazing. Switching gears right now, I know for a fact कि you take therapy. So let's talk a bit more about therapy. So my first question to you is, कैसे पता चला about therapy? Like, कहाँ से पता चला कि हाँ ये चीज कुछ है, जहाँ तुम बातें करते हो किसी स्ट्रेंजर के साथ अपने लाइफ के बारे में और चीजें हील होना शुरू करती है? मेरे माँ बाप ने भी यही पूछा है कि तुम्हें कैसे पता लगा थेरेपी है, क्योंकि तुम तो पंजाबी हो। ये थेरेपी वेरेपी क्या होता है? आओ घर पे खाना खाओ, बढ़िया हमारे साथ रहो, सब सही है। बट नहीं, जो जोक्स असाइड, बट थेरेपी, आई थिंक मुझे पता लगा मेजरली जब मैं ग्रेजुएट स्कूल में आया। तब मेरे को थेरेपी पता, ऑब्वियसली पता था, इससे पहले भी एग्जिस्ट करती है, राइट? बिकॉज अब हम एक ऐसे उसमें रह रहे हैं, टाइम में, जहाँ पे हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम होते जा रहा है। एंड अटेंशन स्पैन जब कम होता है ना, जैसे अब मेरे को कई बार लगता है यार, मैं पूरी सीरीज में 20 एपिसोड है, मैं 2 एपिसोड देख नहीं पाऊंगा मैं ढंग से। चौथे एपिसोड से मुझे लगेगा इंटरेस्ट लूज हो रहा है मेरा। तो आप जब एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हो ना, तो कभी कभार आपको लगता है कि हाँ, थोड़ी सी मुझे नेविगेशन की हेल्प, और इसलिए अब काफी गुड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को लगता है कि मेरे को थोड़ी सी नेविगेशन में हेल्प चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको मार्गदर्शक चाहिए, आपको मार्गदर्शक नहीं चाहिए, आपको बस सिर्फ आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको हेल्प चाहिए उस नेविगेशन में, या एक साथी चाहिए थोड़ा सा जो आपको सपोर्ट कर सके। हम्म, तो सोसाइटी के इस पूरे सिनारियो की वजह से मेरे को पता ही था थेरेपी एग्जिस्ट करती है। बट जब मैं ग्रेजुएट स्कूल में आया, तो आई थिंक इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट आई वाज हैविंग, कि हम्म, एक बहुत जैसे बैड ब्रेकअप हुआ, फिर उसके बाद मैं स्टडीज पे फोकस, एंड आई आई टोल्ड माई सेल्फ कि अगर मैं पूरा स्टडीज में इन्वॉल्व हो जाऊंगा, तो आई प्रॉब्ली वुड बी एबल टू लिफ्ट माई माइंड ऑफ दैट सिचुएशन क्विकर। तो वैसा एक्चुअली हुआ नहीं। तो हम्म. मेरे को अब लगा कि यार, मेरे कंट्रोल में जो जो है मैं सब ट्राई कर चुका हूँ, इसके बाद अब क्या बचा है ट्राई करना। तब मुझे लगा कि अब थेरेपी फाइनली, आई थिंक इफ एवरीबॉडी इज सेइंग दिस एक्चुअली हेल्प्स, तो आई वुडंट नो अनलेस एंड until I try it, right? So Exactly. हम्म, I gave it a हम्म. try, and I contacted a couple of my friends who were taking it, and I knew they were taking it. मैंने उनसे फीडबैक लिया कि तुम्हें कैसा लग रहा है तुम्हारे थेरेपिस्ट के बारे में। एंड therapist also is not a one glove fits all. You may like a therapist, you may not like a therapist. Person to person depends. तो आपको थेरेपिस्ट से एटलीस्ट 2-3 बार बात करना जरूरी है, समझने के लिए कि इज दिस द राइट थेरेपिस्ट फॉर मी। ऐसा नहीं है कि थेरेपी आपको पहले बार एक्सपीरियंस गंदा मिला तो थेरेपी खराब है। थेरेपिस्ट भी आपके लिए एक Exactly. मिसमैच हो सकता है। ऐसा नहीं थेरेपिस्ट खराब है, दे माइट बी अ मिसमैच फॉर यू, राइट? True. तो वो आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, मैंने इससे दोस्तों से बात करी, उनसे पूछा कि हाउ हैज योर नेविगेशन बीन, हाउ हैज योर जर्नी इम्प्रूव्ड, और हाउ हैज योर जर्नी चेंज्ड इन लाइफ। एंड जब मुझे ऐसा लगा कि यार, अ फ्रेंड इज एक्चुअली टॉकिंग along the lines that I would want my journey to look like, तब मैंने उनसे रेफरल लिया, I tried it, and I was lucky enough to get a good therapist the first time over.
I think this happened with me as well. कि first therapist I spoke to, second session में I was like यही है, ये बंदा सही है मेरे लिए, ये कुछ अभी हो जाएगा, ये सेट हो चुका हूँ मैं. When did you start feeling that difference? Which session was it exactly जहाँ पे तुझे feel हुआ कि oh, maybe this is the right thing I'm going through? Because at the beginning, almost everyone is skeptical. I was also skeptical going in कि am I doing the right thing? ये मेरे लिए work करेगी कि नहीं? So how did you go from that initial doubt to that confirmation कि yes, ये मेरे लिए सही है, मैं अभी इसको continue करूँगा? Even before I answered that, like to put perspective on my specific issue and case, it was Okay. yeah, my decision factor basically to go into therapy was यार मेरा चलो breakup is just one aspect of life, and Hmm. I feel there are multiple aspects to life, career, aim, hobbies, family, and all of these spheres are interdependent. So if something goes wrong in one sphere, it impacts the other spheres as well. तो 100%. आफ्टर द ब्रेकअप मेरे को ऐसा लगा कि यार वही पढ़ाई थोड़ी कम हो पा रही है, फिर आई एम अ पर्सन हु टॉक्स रेगुलरली एट होम. मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर पे कम्युनिकेशन पुअर हो रही है. मैं जब अपने मॉम डैड से बात कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी एजिटेट हो जा रहा हूँ. आई फील एजिटेटेड वेरी फ्रीक्वेंटली एंड वेरी क्विकली. इवन इफ दे एज पेरेंट्स, एज पीपल हु आर ग्रोइंग ओल्डर, उनको टेक्नोलॉजी में हेल्प की अब कभी कभार जरूरत पड़ती है. एंड इवन गिविंग देम, एक्सटेंडिंग देम दैट हेल्प, 5 मिनट एक्सप्लेन करना कि यार मम्मा ये टेक ऐसे काम कर रहा है, आप मेरे को ऐसे ऐसे कर सकते हो रीच आउट, या फिर आप इस चीज को ऐसे सिंपली कर सकते हो यूजिंग टेक्नोलॉजी. वो समझाने में मैं एजिटेटेड फील करता था. और फिर बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे को घर पे कॉल करने का मन नहीं करता था. Hmm. So it, I would say कि like I was really in a bad spot with respect to, again, self confidence एक recurring issue था ही. अब एक agitation and aggressiveness भी एक issue develop हो चुका था यहाँ पे. इस पूरे सिनेरियो में आई थिंक जब मुझे ऐसा लगा कि थेरेपी हेल्प करना स्टार्ट कर दिए इज आफ्टर माय थर्ड सेशन. बिकॉज फर्स्ट 2 सेशंस आई थिंक इवन शी वाज लाइक यार ये क्या आ गया मेरे पास. ये क्या आ गया मेरे पास. बट Oh God. I think those first couple of sessions are the therapist trying to gauge you as a person कि तुम आए हो, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है, तुम जो प्रेजेंट कर रहे हो वो प्रॉब्लम तो ठीक है, बट उस प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के रूट्स क्या हैं, या वो प्रॉब्लम स्टेम कहाँ से कर रही है. एंड Hmm. इवन बिफोर दैट कुछ लोगों को उससे भी पहले एक चीज में हेल्प चाहिए होती है, विच इज थॉट फॉर्मुलेशन. कि मेरे को ऐसा लगा दैट आई एम गिविंग माई थेरेपिस्ट इंफॉर्मेशन एंजाइटी, लाइक आई एम शेयरिंग एन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन that on the receiving end she is not able to process it, क्योंकि I am just spewing information all over the place, unrelated information, और मैं वो information collect करके उसको एक cohesive story भी नहीं बता पा रहा हूँ. Hmm. Hmm. तो after the third session she actually helped me synthesize it way better. तब मुझे लगा कि यार, and she calmed me down after, like, first 2 sessions she read me, she tried to understand the situation, me, my problem, and third session onwards she actually helped me synthesize my thoughts, put them in a cohesive manner, and helped me navigate my conversation, which is when I felt कि यार ये एक perfect fit है मेरे Hmm. लिए. Hmm. Talking about the session that you felt, abhi, do you have that one session, like एक session which has stuck with you, which you can like कि like going back, if I'm like, if you have to think कि यार ये session क्या amazing था, it's like worth it, it was out of like the world session, this is like worth it totally. यार मैं तो बोलना चाहूंगा, जब क्योंकि मैंने सारे सेशंस के पैसे दिए तो सारे वर्थ इट है. ओ श्योर, ये तो बट मैं तुझे बोलने ही वाला था, मुझे पता ही था ये तू बोलेगा. बट इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस जहां पे तुझे ऐसा लग रहा है कि यार मतलब दिस इज वर्थ मोर देन व्हाट आई हैड थॉट. एक एक स्पेसिफिक सेशन जो मेरे को हमेशा, आई थिंक वो अभी भी मेरे को बहुत सिचुएशंस में हेल्प करता है काम डाउन करने में और चीजें पर्सपेक्टिव में डालने में, इसके एक बार उसने एक सेशन ऑलमोस्ट आई थिंक 3-4 months इनटू इट उसने मेरे से पूछा कि टेल मी 3 थिंग्स, लाइक व्हाट इज आई, व्हाट इज मी, एंड व्हाट इज आदित्य, हु इज आदित्य. ठीक है. तो शी आस्क्ड मी दिस 3 क्वेश्चंस एंड शी वांटेड 3
separate answers for all three of those. Okay, you know how you see yourself, how you think the world sees you, and what do you actually want to be? How do you Hmm. want to be perceived as? Hmm. 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 एंड दैट सेशन स्टक। यार देखो, थेरेपी का काम है तुम्हारा थॉट स्टिमुलेट करना, वो तुम्हें ना बिल्कुल हैंड होल्ड करके नेविगेट नहीं कर सकते। इफ यू एक्सपेक्ट हैंड होल्डिंग, देन यू आर नॉट रेडी फॉर थेरेपी येट। यू कैन व्हेन हाउ यू नो यू आर रेडी फॉर थेरेपी इज कि यार मेरे को हेल्प चाहिए नेविगेशन में, बट मेरे को भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस चीज डालने में। हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ तो बिल्कुल मैजिकल दवाई सब कुछ सही हो जाएगा। हम्म। आपको एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। ट्रू। ट्रू। ठीक है। तो आप आपको भाई लंग का प्रॉब्लम है और आप स्मोकर हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरे को प्रॉब्लम बढ़ क्यों रही है, क्योंकि आप बढ़ा रहे हो। आपको क्विट करना पड़ेगा स्मोकिंग, राइट? एक वो विलिंगनेस होना चाहिए, राइट। विलिंगनेस होनी चाहिए। तो अब इसमें पूरे में अब इस सेशन के बाद, तो एवरी सेशन, एवरी कंसेक्यूटिव सेशन, आई थिंक शी मेड मी थिंक मोर अबाउट द सेशन आफ्टर एग्जिटिंग द सेशन। जब मैं सेशन से निकलता था ना, तो मैं दो तीन चीजें लेके निकलता था अपने साथ कि यार इसने आज मेरे को ये सब बातें करवाई, बट लाइक इसने लाइक शी टोल्ड मी और ही टोल्ड मी दिस वाज द पर्पस ऑफ दिस सेशन, बट what was the actual purpose? Why did they actually make me do this activity, right? And 2 sessions after that, we talked about, we were talking about this activity for 2 sessions, and on the last session she told me, yaar, ke now what do you think about the activity? And I've already given it 2 weeks of thought, तो मैंने उसको बोला my perspective that we are the sum combination of our environment. Our environment impacts us throughout life, and growing up you realize that, oh, I have a lot of the things that are really similar to my dad, but oh, True. I also have a lot of things that are really similar to my mom. True. And if you stay with your best friend, you're like, oh, I have a lot of things that are also really similar to my best friend. Exactly. Because there's a very popular saying that your IQ is the sum average of all the IQs of your friends and people, the people in the room you hang out with the most. Similarly, you as a person are being shaped by your environment, and it is the average of the average of all the experiences you had in your lifetime. You are a sum average of the 5 people you be with. Yep. People, environment, experiences, True. everything, right? तो जब तुम्हें ये पता लग जाता है ना, तो तुम्हारा नेक्स्ट लॉजिकल थॉट प्रोसेस होता है कि यार मतलब मैं भी किसी का एनवायरनमेंट हूँ, राइट? द पीपल आई हैंग आउट विद, मैं भी उनका एनवायरनमेंट हूँ। तो अगर मेरा एनवायरनमेंट मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, तो मैं भी जिन लोगों का मैं एनवायरनमेंट का पार्ट हूँ, मैं भी उन्हें इम्पैक्ट कर रहा हूँ। Exactly. Yep. Makes sense. यस, ये फर्स्ट लॉजिकल फॉलोअप है। अब सेकंड लॉजिकल फॉलोअप है कि अगर मैं अपने एनवायरनमेंट को ज्यादा पावर नहीं दूं, तो आई कैन बी हु आई वांट टू बी, एंड नॉट इवन हु आई वांट, आई एम हु आई थिंक आई एम। मैं वो हूं जो मुझे लगता है मैं हूं। True. एंड जब आपके पास ये पावर आ जाती है ना, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सर्कलिंग बैक, यार अंडर कॉन्फिडेंट कि क्या होगा, मैं बात कर लूंगा तो क्या होगा, मैं किसी को अप्रोच करूंगा साइडवेज, बट मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं मैं हूं। जब आपके पास ये पावर आ गई, तो अंडर कॉन्फिडेंस की जगह ही नहीं बचती लाइफ में। It's that moment of accepting your own self the way you are, द वे यू and आर, then nothing can beat you because you know कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ. This is what it is, right? and if my environment is impacting me and I don't put a lot of weight on my environment, then who is shaping me? I am shaping me. My activities are shaping me. So now the hobbies or activities that I undertake shape me more than what my environment should be, shaping me, right? तो मेरे environment का जब मैं contribution कम कर देता हूँ, contribution ऐसा नहीं है कभी जीरो हो जाएगा, होगा हमेशा फैक्टर रहेगा वो, बट जब आप उसको मिनिमाइज करके अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करते हो, और आप ये इस चीज पे वेट डालते हो कि यार ठीक है, environment is ever changing. What is constant? I have to stay with myself 10 years down the line, 15 years down the line. This environment might change, these people might change, but who is constant? Who is always with me? 100%. ये इस सेशन के बाद मेरे को लगा कि यार अब दुनिया, मेरा व्यू थोड़ा चेंज हो गया है, पर्सपेक्टिव थोड़ा सा, मेरे को चश्मों का नंबर बदलवाना पड़ेगा थोड़ा सा। One question is कि when you became open about you taking therapy, any
kind of stigma that you face from your surrounding, या ऐसे कुछ, and how did you navigate through it, or how did you like face it, or what action did you take for it? I think I was lucky enough to start therapy during grad school, and it wasn't a stigma by that point because I think 7 or 8 out of 10 people would have been taking therapy at some point, Hmm. just owing to the pressure of a graduate school education. And I feel कि यार स्टिग्मा इतना, क्योंकि सब मेरी एज के लोग हैं, ठीक है। स्टिग्मा होगा होगा कितना ही होगा। आई थिंक स्टिग्मा सिर्फ वहां से स्टेम होगा जिन लोगों ने खुद पर्सनली कभी नहीं लिया थेरेपी, सो दे डोंट नो व्हाट द एक्चुअल बेनिफिट्स आर. So at that point, I can't put a lot of weight on their thought process because they haven't taken it themselves. So second-hand experiences are already 2 hands down the line. I'd rather be taking first-hand experiences. And then this confidence that you've said in your is also through the acceptance in yourself कि ठीक है, मैं ऐसा हूँ, मैं थेरेपी ले रहा हूँ, वो मुझे यूजफुल हो रही है, Right. बाकी जिसको जो बोलना है बोलने थे. दिस इज द फैक्ट दैट आई लव दैट यू स्पोकन इन ऑल ऑफ इट. इट इज शोइंग इन व्हाट यू आर सेइंग कि हाँ, ये बदलाव आया है मुझ में, राइट? आया स्टिग्मा, देखो यार, स्टिग्मा सबसे ज्यादा एज एन इंडियन कहाँ से वो करते हो यार कि यार घर से आएगा, मम्मी पापा बोलेंगे। अब पंजाबी पेरेंट्स है मेरे, तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे कि यार ये क्या होता है, थेरेपी वेरेपी, मेंटल हेल्थ। भाई कुछ नहीं, वीकेंड पे एक आधा पैक पी के सो जाया करो। तो लाइक जनरल पंजाबी फैमिली, बट क्योंकि उनके उनके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि यार थेरेपी भी कोई चीज है, या बिकॉज ऐसा नहीं है कि उनके टाइम पे मेंटल हेल्थ इश्यूज एग्जिस्ट नहीं करते थे। लाइक दे आर द जनरेशन दैट हैव फॉलोड अ जनरेशन दैट आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉर। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वॉर के टाइम से निकले हैं, ट्रू. ठीक है, पार्टीशन के टाइम से निकले, इंडिपेंडेंस के टाइम से निकले हैं, तो उनका ट्रॉमा ही अलग है। द पीटीएसडी दैट दे हैव गॉन थ्रू, उनका ट्रॉमा ही अलग है। एंड उसके बाद फिर दे गेव बर्थ टू अ जनरेशन who was taught to be tough because their parents were from a war generation. ट्रू. But my parents are not from a war generation. They are from a stable economy generation. And if not stable, a growing, developing economy generation that didn't have to see wars prior to the actual Russia-Ukraine war, which isn't even in our homeland. Right? So they've never been close to a war situation. So their struggles are different. Their struggles is the struggles of, for example, अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आया, तो the struggles of an immigrant trying to rework their life, remake it. हमारी struggles entirely different है. So they will, the point, अगर आपको थोड़ा सा पुशबैक मिल भी रहा है, थोड़ा सा आपको घर से मिल भी रहा है ना फीडबैक नेगेटिव या वो नहीं समझ रहे, तो आपको हमेशा अपने मन में ये सोचना है कि वो आपकी स्ट्रगल से कभी भी 100% रिलेट नहीं कर पाएंगे. 100%. ट्रू. एंड ये एक्सपेक्टेशन रखना है भी गलत, बिकॉज क्या आप 100% उनकी एज के हो? नहीं, आप उनकी एज से 25-30 साल 35 साल नीचे हो. तो वो जो उनके 25-20-30 years ऑफ एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंसेस ऑन टॉप ऑफ योर एक्सपीरियंसेस है, तो डेफिनेटली उनका थॉट प्रोसेस, क्योंकि जब आप अपने आप को 5 साल पहले देखते हो, बोलते हो यार 5 साल पहले का आदित्य वाज वे डिफरेंट देन टुडेज आदित्य. एंड I would say he was underconfident, and he was trying to navigate life. At this point, I'm still trying to navigate life, but the direction has changed. To also adding to your point ki that is what, like, they are a sum product of their environment which was very different. You Right. cannot expect them to totally relate to you, and you have to accept the fact. Once you accept the fact, then it is that there's a forgiveness that comes in for x whatever amount of things that you felt कि यार मेरे parents ने ऐसे क्यों किया, मेरे parents ने वैसे क्यों किया. There's this acceptance कि like growing up you might have some regrets कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, but like they did what they thought was the With the best resources for they had. them. Right. Exactly. And then they've grown up a certain way. We cannot go through it, or we cannot understand, or like we cannot relive it, right? ठीक है, some reflection time now. Okay. What do you think about the Aditya before therapy versus the difference of the Aditya that I am sitting with right now in front of me? खुद में तुझे क्या like difference feel हुआ है after taking therapy? I think I've
द स्मॉल थिंग्स आर, यार मैं बहुत काम हो गया हूँ, आई गिव अ लॉट ऑफ थॉट टू व्हाट आई से टू पीपल, Hmm. बिकॉज you might take 5 seconds to say it, but some people spend an eternity thinking about it. So I word my phrases or like whatever I want to say very cautiously now. Sometimes दोस्तों के साथ तो चलता रहता है. But uh, again, I've started being more cautious on the people I choose to share my feelings with, Hmm. because I don't Correct. want to open up too fast, too quickly, only to be, अगर तुम बहुत जल्दी डेवलप कर लेते हो अटैचमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस often lead to and mismatched, not expectations, mismatched expectations often lead to, a low point in your life, because they mismatch matlab ke some of them are not getting fulfilled, right? Hmm. So you Right. have to pacing expectations is what I've learned. Pacing, I haven't started giving up on expectations. I started pacing them well. True. I don't want to give up on the quality of my expectations. Hmm. ऐसा नहीं है कि यार पहले मैं बोलता था कि मेरे दोस्त, आई इन ऑर्डर फॉर मी टू कॉल यू अ फ्रेंड, यू शुड क्लियर these criteria. At this point they still need to clear, basic minimum criteria of being a decent human being, Hmm. but I give their personality time to show itself in its full glory to me, कि ऐसा नहीं है कि मैं दो कॉन्वर्जेशंस पे जज कर लूंगा कि यार ये अब तो ये दोस्त नहीं बन सकते, इसने तो यार ये ऐसी बात बोल दिया, ऐसा कुछ कर दिया. Right. हाँ. Hmm. Hmm. अब मैं उन्हें टाइम देता हूँ, क्योंकि यार ऐसा हो सकता है कि दे में ऑल्सो बी एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ बी गोइंग थ्रू अ टफ सिचुएशन, अ टफ स्पॉट. इट मे बी, स्टेयर ऑफ द मोमेंट थिंग. तो आई स्टार्टेड पेसिंग देम, आई स्टार्टेड, आई उसकी वजह से मैं काम हो गया हूँ. आई थिंक द एग्रेशन और एजिटेशन लीड्स टू एग्रेशन इन माई माइंड. एजिटेशन कम होता है तो आपका ऑटोमेटिकली एग्रेशन टुवर्ड्स थिंग्स कम हो जाता है. तो मेरा एजिटेशन बहुत कम हो चुका है लाइफ में. मैं आई रेयरली फील एजिटेटेड और ओवरवेल्म्ड बाय सिचुएशंस. Amazing. That is amazing progress. And I feel the thing about being thoughtful is like also we've become very mindful of observing what we are feeling in that moment कि oh मुझे ये feel हो रहा है but I should not be reactive एट दिस मोमेंट. impulsive to that feeling. हाँ. I think तो and मैंने खुद ये बहुत ऑब्जर्व किया है in you because I've known you since the grad school, start of the grad school versus end, and in between you started taking up therapy. Definitely a lot of improvement. Will give you that थैंक यू. for sure. बट वही लाइक दिस इज अगेन लाइक अनदर थिंग दैट थेरेपी टॉट मी, कि यार ऐसा नहीं है कि एग्रेशन बाय इटसेल्फ एक बैड इमोशन है. कोई इमोशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस इज नॉट अ बैड इमोशन. It 100. only becomes bad if you choose to express it a certain way. If you express Love it that. in a manner that actually, makes sense, कि यार if you are able to put what is making you angry in a manner that is understandable by the person, if they matter enough. If they don't, I think the conversation is already beyond, you know repairing point, yeah, repair point. But if they matter to you enough that you actually feel like expressing that anger, तो आपको ये ध्यान रखना है, आप उसको एक इस तरीके से एक्सप्रेस करो कि यार दूसरे बंदे को समझ आए उसकी लैंग्वेज में, उसकी भाषा में, राइट? Love the क्योंकि अगर love. आप Hmm. अपने अपने तरीके से बोलते जाओगे तो यार आपको तो लग रहा है मैंने सब बता दिया, मैंने पूरा दिल हल्का कर दिया, बट उसको कुछ बात समझ ही नहीं आई, तो मिसकम्युनिकेशन है. True. Love the fact कि जो तूने बात कही है कि in the spectrum of emotions, no emotion is bad unless we राइट. decide how to act on it. And this is what therapy has helped me personally as well कि ठीक है गुस्सा आ रहा है सही चीज है ये सही बात है क्यों आ रहा है वो थोड़ा ढूंढ के अब इसको बेटर कैसे किया जाए is I think all that matters in a positive करेक्ट. way. राइट. Okay. I know we've spoken a lot about therapy, like about the past, how it has helped you. Let's also talk about the present. Okay. How does Aditya Bindra prioritize his mental health in daily life right now? Any particular amount, like any particular steps that you take, anything that you like do in your life or practice in your daily life to make sure that ठीक है, I am filtering, I am regulating my emotions and my mental health. I think a lot of it
comes with the meditation. मेरे को मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हम्म हम्म कि इफ आई एम फीलिंग एजिटेटेड और इफ आई एम फीलिंग यार, मैं ना बहुत ऐसा पर्सन हूँ कि मेरे को अगर घंटे में 5 मिनट भी मैं फ्री बैठ रहा हूँ, मुझे लगेगा मैं फ्री क्यों बैठा हूँ, क्योंकि मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा, मैं फ्री कैसे बैठा हूँ। मेरे को एजिटेशन होती है कि मैं फ्री हूँ कैसे, मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ। हम्म इस चीज True, में मेरे I've को been there. I'm the same. एंड इस चीज को काम डाउन करने में मेरे को, इस चीज के लिए मैंने शुरू करी थी मेडिटेशन। बट जब मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट हुआ, मेरे को रियलाइज हुआ, एंड ऐसा यार, मेरे को लोग कहते हैं कि लाइक हाउ आर यू एबल टू सिट फॉर सो लॉन्ग, हाउ आर यू एबल टू डू इट फॉर सो लॉन्ग नहीं है मेरा टाइम, जितना भी टाइम है XYZ मिनट्स। बट एवरीबडी स्टार्ट्स, या एवरीबडी स्टार्ट स्मॉल। मेरे को लगता है 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। True. बट अगर आप रेगुलरली 2-2 मिनट बैठ रहे हो, आपको एक दिन तो ऐसा लगेगा यार कि मैं 3 मिनट और बैठ जाता तो मेरे को अच्छा लगता है, राइट। तो आप स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार आप एक दिन बैठे और 25 मिनट में बहुत कुछ हो गया, बट ओवर टाइम आई रियलाइज कि यार जब मैंने एक Exactly. महीना 2 महीना करा, मुझे लगा कि probably this has helped me more than I give it credit for. तो मेडिटेशन हेल्प्स मी कलेक्ट माय थॉट्स, क्योंकि मेरे आई वाज अ पर्सन जिसके थॉट्स आर ऑल ओवर द प्लेस, इसलिए मैं घंटे में 5 मिनट भी फ्री नहीं बैठ पाता, क्योंकि मुझे लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। And as a personality, it's a multi-potentialate personality where I have, I want to pursue infinite hobbies, but only, you know so let's say 10 of them actually I go deep into, and only 5 of them are actually I'm passionate enough to go even deeper, and only one ends up being a genuine passion hobby. But Hmm. I'm only able to focus on it like that because I try so many hobbies. एंड ऐसा नहीं है कि मेरे को कट डाउन करना है ट्राई करने में, तो मेरे को अपनी ये पर्सनैलिटी, मेरे को बस अपने थॉट्स कलेक्ट करने हैं कि आई शुडंट बी स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन थिंकिंग व्हाट आई शुड डू देन रादर डूइंग इट, राइट। मैं आई वुड रादर स्पेंड दैट टाइम ऑन डूइंग एन एक्टिविटी देन थिंकिंग अबाउट कि कौन सी एक्टिविटी करनी है। Exactly. More like वो doing it, trying it out, and then कि ये मुझे थिंकिंग है जम रहा है कैसी नहीं आएगी, जम रहा. Exactly. वो And थॉट कलेक्शन। true. Definitely going to emphasize the fact कि meditation is so underrated कि we feel कि ये क्या है, शांति से चुपचाप से बैठना, ये वो. But the fact of how mindful you get after, like, and I have myself faced it. I have myself understood the benefits ki baitha hu 15, I started with 2 minutes, 5 minutes, 15. Now I can even sit on some days like 30 minutes straight, do a meditation, and then I've realized the zen mode or like the centered feeling that you have. Definitely. Yep. And it also एंड shows in the interactions with you have, the way you talk to people, the way you react to situations, the way you handle things, right? इट डज जैसे मेरे को ना हमेशा लोग कहते हैं यार तू बड़ा इंपेशेंट है, तू फिनिश ही नहीं करने देता हमें, तू पहले ही बीच में काट के शुरू हो जाता है बोलना। जो तो कुछ हद तक मेरी अभी भी वही प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहूंगा पूरी क्योर हो चुकी है, क्योर तो आई थिंक जब होगी तब होगी। बट उससे वो भी एक प्रॉब्लम ये थी कि यार लाइक मेरे को एक्सप्रेस करना है बट मेरे को सुनना नहीं है। आप वो वैसे आप अच्छे लिसनर होना बहुत जरूरी है लाइफ में, 100%. फॉर यू टू बी एन अप्रोचेबल जेन्युइन पर्सन। कि आप अगर अच्छे लिसनर नहीं हो तो आप कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे सामने वाले बंदे से, क्योंकि आपने अपना पूरा बता दिया बट आपने उसका सिचुएशंस नहीं समझे, आपने उसकी बात नहीं समझी, तो इट डजंट वर्क वन वे, इट हैज टू बी अ टू वे स्ट्रीट। वो भी True. मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है आपको टू बी अ गुड True. लिसनर इन लाइफ। True. You actually open your ears to understand what that person is saying rather than to just reply to what the person is saying, right? आप सुनना नहीं, आप समझना भी चाह रहे हो। समझना भी चाह रहे हो 100%. ठीक है. I know you and I have both had our fair share of like mental health struggles that we have had. We went through it, therapy, meditation, everything. What one piece of advice would you give to someone out there right now who is struggling through their mental health, be it anything that they are going through? What would your 2 cents be about it? यार मैं सिर्फ अपने अपने एक्सपीरियंस का बोल सकता हूँ कि जब मेरी तरह के जो 100%. लोग हैं, Yes, yes, जो yes. मेरी तरह के लोग हैं, क्योंकि सबका सिचुएशन अलग अलग है। बट True. अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपको सच में हेल्प की जरूरत है नेविगेशन में, तो आपको नेविगेटर ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। Hmm. आपको सोचते नहीं रहना चाहिए कि यार
करूँ नहीं करूँ, कब करूँ, या मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, मैं खुद भी कर सकता हूँ ये भी। अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ टूर गाइड देन टू एक्चुअली रीड अबाउट इट एंड गो टेक अ टूर, बिकॉज आपको ज्यादा, यू मे बी मिसिंग स्पॉट्स दैट यू डिडंट इवन नो एग्जिस्टेड इन दैट प्रेमिसेस, राइट? देन यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड डू योर होमवर्क एंड सी के टूर गाइड ने जो मेरे को बताया सही बताया नहीं बताया, बट गिविंग देम अ शॉट इज इंपॉर्टेंट, राइट? True. तो नेविगेटर ढूंढना, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको है इशू, तो आप ढूंढना शुरू करें, ठीक है? और आप सिमिलर पीपल ढूंढ रहे हैं जो एक सिमिलर, क्योंकि आप सेम सिचुएशन तो कभी नहीं ढूंढ पाओगे, Hmm. बट आपको एक कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है कभी ना कभी एट सम, बिकॉज हम सोशल एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस हैं। आपको कोई कितना भी बोले कि यार मेरे को अकेले रहना पसंद है या मेरे को अपने आप के साथ, बट एट सम पॉइंट दे नीड अदर ह्यूमंस सपोर्ट इन एनी फॉर्म, मेंटल, फिजिकल, वट। तो एट सम पॉइंट आपको एक कम्युनिटी ढूंढनी पड़ती है जो एक सिमिलर सिचुएशन से या तो गो थ्रू कर चुकी है या जा रही है, सो दैट वो आपकी फीलिंग्स को ना रीअफर्म कर पाए। रीअफर्मेशन, क्योंकि जैसे आपको सेकंड थर्ड पार्टी से रीअफर्मेशन मिल जाती है, तब आपको एक ये तो सुकून है ना कि यार ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ हो रहा है, या फिर सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। True. अगर आपको लगता है आप एफर्ट्स डालने के, पहली बात तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है आप एफर्ट्स डालने के लिए अभी विलिंग हो भी या नहीं हो। वही Exactly. पहला स्टेप है। आपको Hmm. हेल्प सी करने से पहले आपको खुद की हेल्प थोड़ी तो करनी ही पड़ेगी कि यार True. मैं तैयार हूँ। अब मैं आपको अपने आप को अपना मन पक्का करना पड़ेगा कि आप जो भी ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, मैं तैयार हूँ लेने के लिए हेल्प। Hmm. मैं वेलकमिंग एनफ हूँ टू गेट हेल्प, ठीक है? अब आप, पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है अच्छा, एक थोड़ा थेरेपिस्ट ढूंढे, साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, वहां जाए, आपके ऊपर है, डायग्नोस होना है होए, ये अपनी अपनी जर्नी है, यू ओनली नो व्हेन यू टेक इट। बट 100%. मेरा मेरा पॉइंट यही है, मेरा सिर्फ एक होएगा, आप जर्नी शुरू करें, स्टार्टिंग में ना खट जाए। Take that first step हाँ, which is necessary and then only you will know. Don't वो inertia को push through करना ही I think हाँ। is that और वही आई one थिंक हमारा important. गोल है यहाँ पे, एंड आई आई कमेंड यू फॉर दैट, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर टेकिंग दिस अप, बिकॉज इंडिया में इवन दो देर आर Thank you. पॉडकास्ट एंड देर हैव बीन टॉक्स, बट I think this would turn out to be something amazing and something that would actually be helpful to a lot of people. Thank you so much, Bhai, for affirming that. I am really grateful and thankful, and definitely, it's the only goal is to try to make as much a impact for people to normalize this thing of like, ठीक है, we are facing it. Let's go out there, seek help, help someone else, talk to someone about it, and there is always a solution to it. राइट, राइट। जैसे मैंने बोला कि आपको कम्युनिटी सिमिलर, जो सिमिलर चीजों से गए वो सीख करना जरूरी है, तो हम आपको कह रहे हैं कि यार हम भी उसी कम्युनिटी का पार्ट है, हम कर चुके हैं, और सबके साथ होता है। True. सब, मैं तो ये कहना चाहूंगा, सबके साथ कुछ ना कुछ तो, क्या, द राइट पंजाबी वर्ड इज भसड़, कुछ ना कुछ तो सबके साथ भसड़ चल रही है। ठीक है. I think that were all the questions that I wanted to ask, and amazing answers. And one thing that will stick with me going forward is every emotion in the spectrum of emotions is correct. It's not bad. It only becomes bad when you choose to take an action which is not correct at the moment. So thank you so much for this. Is something that I learned today. I am going to sleep with it and like be with it. And definitely I am sure कि the viewers उनको भी समझा होगा तेरे एक्सपीरियंस से कि how you can go out there and change your life, destigmatize the mental health space which is out there. So thank you again for willing to come to my podcast, talk about it, be open about it, and uh, talking through your experience. So I am grateful and I definitely appreciate that, Aditya. Thank you so much for having me. And I think this was also a selfish motive. The more you share it, the lesser power it has on you, right? So the more I share True, true, it. true. So thank you for having me. Thank you for, putting this podcast out there, and, just being you, man. You're an amazing person. Always Thank you nice to so talk to you. much. Means a lot, bhai. Means a lot.